the constant force, and in this consequence I told you if there is a theta angle. Now my voice is okay for all of you, those who have having problem earlier. I think now my voice is clear, no extra sound should be coming now. Okay, yes, so yes, so everything is fine. Okay, so now we can start the class. Now the students are saying yes sir. Okay, so okay students, now we start the class. So yesterday class was based on the work done by the constant force, means we discussed about the work done by the constant force. Whenever the force is constant, does not change with respect to displacement of the object, then the work is basically found by the direct Fs cos theta, where theta is the angle between the direction of the force and the displacement direction. Then in this consequence, on the basis of the theta, that is the angle between force and displacement, we discussed three types of work done may be possible on the basis of the value of theta. In this, first we discussed positive work. Positive work means if the angle between force and displacement is greater than 0, equals to 0 but less than 90. Angle between force and displacement is greater than equals to 0 but less than 90, then we say it is a positive work done. I told you that those forces which increases the velocity generally are having the positive work done. Then I discussed second, negative work done. Negative work done means if the angle between the force and displacement is greater than 90 and less than equals to 180 degree, then the cos theta become negative, and in this way we can get the work done also negative, and this is called as the negative work done. An example of the negative work done I also told you. Main example generally I told you friction, but friction के बारे में मैंने एक बात आपको explain की थी. It is not necessarily always that the work done by the friction is always negative. When the friction opposes the relative motion only, then the work done by the friction is negative. And vertical upward motion also we can see. Whenever we throw any ball in vertical direction, then the gravity force act in the downward direction. The ball is going upward direction. In this way, the angle between force and displacement is 180 degree, and the work done by the gravity is negative. Now, yes, Ambika, braking force is there. Braking force means you can say resisting force. Braking force is different type. इसमें आपका जो है deforming force we can say, which deform the basically shape or size the object. But you have to see that whether any displacement has taken place or not. In physics, the concept of work done is very clear that there should be always some displacement on applying some type of force. Whichever type of force is there, there should be some type of displacement, and then we find the work. So braking force you are taking, that is good, that is okay, but we have to also see that by the application of that braking force, is there any displacement occurring or not. Then we can only conclude whether it is the work done or not. So like that. Okay. So in this way, and zero work done, when the force and displacement are 90 degree to each other exactly, then we say this is the zero work done. Zero means there is no work done in the from the point of view of physics. But I told you that it is not always necessary. And famous Cooley example was very famous example regarding this. Cooley put his luggage on his head and walks straight. Then the angle between weight and force, that is force and the displacement of the pulley is 90 degree. So according to point of view physics, the work done by the pulley is zero. But in practice, we cannot say like that because he has done some muscular work. Physics के point of view से he has not done any work, but he has done some muscular work, so you have to pay him. Okay, so that's all that we yesterday discussed. Now we discuss the next topic, work done by the variable force. Now actually sometimes or many times, always it is not necessary that the force is constant. कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है बच्चों की, जो किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है, that force is not constant always. Okay, किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, that is not constant force always.
means that force changes its magnitude as the object moves. ठीक है, ऑब्जेक्ट की मोशन के स्टार्ट होने के साथ साथ वो जो फोर्स होता है वो अपनी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली फिर अब जब फोर्स आपका वेरी कर रहा है तो फिर उसका कौन सा वैल्यू लें। जनरली हमने पढ़ा एफ एस कॉस थीटा, लेकिन वहां तो फोर्स कांस्टेंट है तो आप कोई सा वैल्यू लो, एक ही बात है। बट इफ द फोर्स इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट इज द मेथड टू फाइंडिंग द वर्क, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो आवर टुडेस टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय variable force. So let us explain it very conveniently by the graph. इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करना बहुत कन्वीनियंट है, तो हम इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया। ऑन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस आई हैव टेकन डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड द फोर्स ऑन वाई एक्सिस। Then let us initially object is situated at the displacement xi. Xi means position of the object initially. Initial position of the object is xi, and now we apply some force, but this force is like this. Now you can see if it had a constant force, then the graph would have been a straight line, like straight parallel line. Then we would have been said that it is a constant force. But now you can see that the variation of the force is in curved form. ये force का जो variation है ये curved form में हो रहा है, और that is now it is xf, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो ये है। तो नाउ वी कैन डिवाइड दिस कर्व। अब इसमें हमें वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका टेक्निक आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि हम इस पूरे कर्व को छोटी छोटी n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कन्वर्ट मान सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको मैनी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन एक स्ट्रिप लेते हैं, लेट अस से PQRS, और इसमें जो डिफरेंस अपन लेते हैं डेट इज dx, और यहाँ पे ऑलमोस्ट फोर्स को अपन क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो दैट इज से द स्ट्रिप PQRS, और इस स्ट्रिप PQRS में ये डिफरेंस कितना हो गया, dx और डेल्टा x, यू कैन से डेल्टा x आल्सो, पहले डेल्टा x ले लेते हैं। और दिस इज फोर्स, ये हमारा फोर्स ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम ये मान रहे हैं कि हियर द इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन कंसीडर एन एलिमेंट स्ट्रिप, कंसीडर एन एलिमेंट स्ट्रिप, लेट अस PQRS विथ विड्थ, हैविंग विड्थ भी लिख सकते थे, हैविंग विड्थ dx और डेल्टा x वी कैन राइट, एंड द लेंथ f। लेंथ f क्यों माना है, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट जब अपन P से Q या R से S तक अपन जा रहे हैं कर्व पे, तो फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट अपन क्या लेके देख रहे हैं, कांस्टेंट है। तो उस स्ट्रिप में अपन इतना स्मॉल इंटरवल लिया है कि उस इतने स्मॉल इंटरवल में अपन फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इन स्मॉल इंटरवल the force can be considered constant. In small interval force can be considered constant. तो that is ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप। तो ये जो एलिमेंट स्ट्रिप अपन ने ली है PQRS, इस एलिमेंट स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट इज डेल्टा W इक्वल्स टू F इंटू, सॉरी डेल्टा W भी नहीं लिख रहे हैं अपन, एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप। तो स्ट्रिप ऑफ रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर एरिया L इंटू B आप जानते हैं। तो यहाँ पे L इज F, dx इज ब्रेथ, dx इज वर्किंग लाइक ब्रेथ ऑफ द स्ट्रिप, डेल्टा x। एरिया ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा x। नाउ स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स। अब यदि हम क्या निकालें कि, क्योंकि हमने क्या बोला,
अभी हमने बोला कि स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स में हम स्मॉल वर्क डन क्या ले सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू। तो दैट वी कैन राइट एफ डॉट डेल्टा एक्स। यहाँ तो अपन डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, एफ एक्स कॉस थीटा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि डेल्टा एक्स जो इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का, उसमें जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट फोर्स वाला लॉजिक लगा दिया, मैंने यहाँ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का लॉजिक लगा दिया, क्योंकि मैं ये वर्क डन पूरे ग्राफ पे नहीं निकाल रहा हूँ। दैट वर्क डन आई एम कैलकुलेटिंग ओनली फॉर द इंटरवल delta x displacement interval, and already we have seen taken that in this small interval of displacement delta x, the value of the force can be considered as constant. So that's why in the small displacement delta x, now we can take our small work done, that is f dot delta x. So what we can do, we can do the small work done, that is f dot delta x. So that you always keep it in your mind. अब हम ये, let us say earlier equation was number 1 and this is equation number 2. Now if we compare the equation number 1 and 2, if we compare the equation number 1 and 2, then I can say area of element strip equals to delta w. यानी यहाँ पे जो हमारी एलिमेंट स्ट्रिप PQRS अपन ने कंसिडर करी, उस एलिमेंट स्ट्रिप का जो एरिया है वो वास्तव में डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है। नाउ यू कैन सी इन द ग्राफ आल्सो एफ डॉट डेल्टा एक्स, एफ डेल्टा एक्स। तो व्हाट वी कैन से हियर स्टूडेंट्स, वी कैन से हियर दैट बाय 1 and 2, by 1 and 2 area of element strip can be equals to small work done delta w, that is f dot delta x. अब अपन क्या कर सकते हैं, ये बात तो हमने देख ली कि भाई स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप जो लिया अपन ने, उस स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया किसके बराबर बैठा है, किसके बराबर आ रहा है, वो दैट इज इक्वल्स टू द स्मॉल वर्क डन in delta x displacement. Now I can say this whole graph can be considered making of such strips. ये जो पूरा ग्राफ है इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स से मिलके बना मान सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को अपन यदि ऐड कर देंगे तो पूरे ग्राफ का एरिया आ जाएगा, और जैसे जैसे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड होता जाएगा वर्क डन भी तो ऐड होता जाएगा ना। अरे भाई एलिमेंट स्ट्रिप के एरिया को ही अपन स्मॉल वर्क डन बोल रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू इन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस ग्राफ कैन बी कंसीडर्ड मेकिंग ऑफ सिमिलर स्ट्रिप्स ऑफ मेनी नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स की इस तरह की सिमिलर स्ट्रिप से मिलकर अपन इस ग्राफ को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपन बहुत सारी स्ट्रिप लेते रहें और सबका एरिया निकालते रहें और उन सभी एरियाज को अपन ऐड करते रहें, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। और दूसरी तरफ वो वर्क डन भी, वो सब क्या होंगे, अपने अपने डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन होंगे। तो जब हम एरिया को ऐड करते जाएंगे तो वर्क डन भी जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से अपन क्या कह देंगे कि जब स्मॉल एरिया स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करते 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 अपन पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, तो दूसरी तरफ वो पूरे टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग इंटरवल के वर्क डन भी ऐड होते जाएंगे और सभी वर्क डन ऐड होकर क्या बन जाएगा, नेट वर्क डन बन जाएगा। मतलब मैं आपको अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो टोटल एरिया मिलेगा आपको, दैट टोटल एरिया विल बी इक्वल टू द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये कंसेप्ट जो है हम डेवलप करना चाह रहे थे कि ग्राफिकली यदि मान लीजिए कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर वेरिएबल फोर्स आपको नजर आ रहा है, जिसमें क्या नजर आ रहा है आपको, वेरिएबल फोर्स नजर आ रहा है, देन ऑलवेज यू रिमेंबर दैट एरिया ऑफ दैट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, what I told, area of the force displacement graph is equal to the work done by the force. वो नेट वर्क डन बाय द फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए इसमें क्या समझ नहीं आया? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, आई विल हैप्पी टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो नाउ
This graph can be considered, this graph can be, we can say, considered making of many number of making of many number of such strips, इस तरह की बहुत सारे स्ट्रिप से मिलके बना अपन मान सकते हैं. सो द टोटल एरिया ऑफ एफ एक्स मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो टोटल एरिया of fx graph we can write sigma I equals to 1 से n f into delta x I. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, f into delta x I हो जाएगा. कांस्टेंट फोर्स अपन अज्यूम कर रहे हैं, f I ले लेते हैं वहां पे भी. और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा w, ये डेल्टा w आ गया. ठीक है, तो ये डेल्टा W क्या हो गया आपका, बेसिकली W हो गया. तो नेट वर्क डन वी कैन राइट टोटल एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन W. ठीक है बच्चों, ये तो होगी ग्राफिकल बात. यानी आपको कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए और उस ग्राफ में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए एंड आपको पूछा जाए कि फाइंड द वर्क डन, तो आपको क्या कर देना है, उस ग्राफ का एरिया निकाल देना है जहां तक का वर्क डन वो पूछ रहा है. जितने डिस्प्लेसमेंट तक का वो वर्क डन आपसे पूछ रहा है वहां तक का आप क्या निकाल दीजिए, उसमें व्हाट वी कैन से एरिया निकाल दीजिए. So that is you have to understand, I think, in well manner. 22 students I think finally sat in the class out of 35. I can see on my screen 22 students are there now, right now. Total are 23 out of 23. One is myself, so 22 students are there in the class. Actually 22 are there, one also is sir is there. So 21 student, 22 students are there in the class. Student, yesterday I also called to the parents of some students who are regularly absent, even after midterm vacation not attended even a single class. I called them. एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट मैंने लगभग 4 बच्चों को फ़ोन किया था और सभी के पेरेंट्स का ये कहना था कि वो अपनी मर्जी से क्लास, मतलब उनको उन्होंने सब फैसिलिटी है उनके पास, बस वो खुद अपनी लापरवाही से जो बच्चे हैं वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मतलब पेरेंट्स का ये कहना था कि हमने तो इनको मोबाइल भी दिला दिया है, नेट का कनेक्शन भी है, ऑल द फैसिलिटीज वी है, दे हैव इक्विप्ड विथ, बट वो लोग जल्दी नहीं, सुबह सोते रहते हैं 10-10 बजे तक, अटेंड करने का मन नहीं करता क्लास, और हम कहते हैं तो कहना नहीं मानते हैं. इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली पेरेंट्स से. इट इज़ रियलिटी, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ बच्चों, इट इज़ रियलिटी. दैट आई फेल्ट वेरी 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 सॉरी और वेरी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इन ऑनलाइन सिस्टम देयर इज नथिंग. आपको केवल अपने घर पे अपना मोबाइल ऑन करके कॉपी पेन लेके बैठना है, वो भी आप लोगों से, कई बच्चों से नहीं हो रहा है. आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप तो कर रहे हैं, 23 स्टूडेंट्स आर वेरी गुड स्टूडेंट, बट जो आपके कई साथी लोग हैं, मतलब उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था क्लास अटेंड नहीं करने का. दे डिडंट हैव एनी सिंगल जेन्युइन रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग द क्लास. एक पेरेंट से मैंने फोन किया तो फिर उसने बच्चे को दे दिया, तो बच्चा बोला सर मेरी आईज में बहुत प्रेशर पड़ता है और मुझे डॉक्टर ने आई रेस्ट के लिए बोला है कि भाई मेरे को आईज पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है और मोबाइल के सामने मुझे क्लास अटेंड करूँगा तो मेरी आईज में. मीनवाइल हर मदर वाज देयर एंड शी टोल्ड कि ये बहाने बना रहा है. मतलब उनकी मदर ने उनकी पोल खोल दी उस बच्चे की.
बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले थोड़ा बहुत बस इसके आंखों में पानी वानी आता है, लेकिन उसके लिए ड्रॉप ड्रॉप डालते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इसके आंखों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ये हालत है बच्चों। मतलब आपके कई साथी जो है वो पेरेंट्स लोगों से झूठ बोलते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, और बिल्कुल मतलब लापरवाही से काम हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे हमारे राडार पे हैं, पूरा हमारी नज़रों में है। ऐसे कौन से बच्चे हैं, बिल्कुल मैंने उनको नोट कर लिया है और फ्रीक्वेंटली हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। बच्चों हमारा पर्पस ये है कि जब हम स्कूल आपके लिए ऑनलाइन सिस्टम में इतने एफर्ट स्कूल की तरफ से हो रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल की तरफ से इतने एफर्ट आपके लिए हो रहे हैं और यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों यू जस्ट फील योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल इज हैंडलिंग, वी आर trying to finish our responsibility in well manner, but at the same time it is not the one way ना, it is two way work। केवल हम भी बोलते जाए और आप लोग से न्यूट्रल, तो इफ ये तो कोई मतलब ये 2-1 तो आपको भी उसमें करना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसका भी कारण है क्योंकि हमें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये इस एज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों की बातों को सुनते हैं। वो एक चुटकुला भी है कि भाई दोस्त का जो गोबर ज्ञान है वो तो दिमाग में घुस जाता है और जो पेरेंट्स और टीचर बोलते हैं वो दिमाग में नहीं घुसता है। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि आपके जो साथी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा समझाएं। क्या मालूम दोस्तों की बात उनके दिमाग में बैठ जाए, पेरेंट्स और टीचर की बात उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है। तो एज ए फ्रेंड्स यू कैन मेक, जो बच्चे अच्छे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंट, मेरे को ये पता है कि कौन बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यू कैन रिक्वेस्ट मान लो कि आप अपने साथियों को थोड़ा कन्विंस करें कि भाई इसमें क्या है। जब आपके भाई चलो किसी के पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बाद मोबाइल ही नहीं है, किसी के जेन्युइन कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन व्हेन पेरेंट्स आर सेइंग कि सर हमने तो उसको सब दिला रखा है, मोबाइल भी इसके पास है, नेट कनेक्शन भी है, बस ये खुद ही इसकी इच्छा नहीं होती है, सुबह सोते रहते हैं, 8 बजे क्लास होती है तो ये सोते रहते हैं। और कई बच्चे ने तो बता भी नहीं रखा घर पे की टाइम टेबल। हमने बोला एवरी डे वी अपडेट, वी सेंड द टाइम टेबल इन द ग्रुप, योर क्लास ग्रुप, कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी बजे होगा। कोई चेंज भी होता है तो इमीडिएटली हम आपको बताते हैं कि भाई आज ये चेंज हो जाएगा। इतना करने के बाद भी many of your fellows are not attending the class and just cheating their parent and just cheating the school and nothing else. So student, you just try to understand all the world is passing with this pandemic time, and in this time we are focusing on the study in online mode, and not only here, everywhere the same system is going on. So you should cooperate, you should take it positive, and you make understand your friends also, they should also take positive. आप चाहे तो मैं आपको नाम बता दूंगा कि पब्लिकली, तो क्या मैं आपको भेज दूंगा नाम कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो जिनको आप समझा सकते हैं। यदि वो आपके कांटेक्ट में हैं तो आप उनको समझाएं कि भाई क्लास अटेंड करना तो एक अच्छी बात है ना, क्लास अटेंड करने में कोई बुरी बात नहीं है। केवल वो भी घर पे बैठ के, मतलब अब तो स्कूल भी नहीं आना है। देखो मतलब अभी कोई बहाना है नहीं कि साहब सर्दी लगती है, नींद नहीं खुलती है। अरे भाई घर पे आपको 8 बजे को इतना जल्दी नहीं है, आराम से आप अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। 8 बजे तक कोई सोना भी नहीं चाहिए। सोने का टाइम हार्डली 5:30-6 बजे बाद तो सोना ही नहीं चाहिए किसी को, यदि अपन हेल्दी लाइफ की बात करें तो 8 o'clock इज नॉट अर्ली, यू नो। बस वो आपकी क्या आदतें खराब पड़ गई कि इतने दिन से स्कूल नहीं खुले ना पैंडेमिक में, तो वो 10-10 बजे तक सोने की आदतें पड़ गई कई बच्चों की। अदरवाइज लेट स्लीपिंग इज डेफिनेटली बैड हैबिट। यू शुड नॉट स्लीप even after 6 o'clock in morning. So that is the student things that you have to, you know what I'm telling, you have to take care about. Okay, तो मैंने थोड़ा क्लास को पॉज करके ये बातें बताई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि all students should join the class, all students should, you know, effortly, positively show their responsibility, and then we will be feeling very happy that okay, our efforts are being
यूटिलाइज्ड और फुली फर्निश्ड। तो ये तो ग्राफिकल मेथड सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स ग्राफ का, है ना। अब इसमें अपन देखो तो अपन नेट वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ डेल्टा एक्स इंटू आई इक्वल्स टू 1 से लेके n। नाउ इफ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आर वेरी लार्ज, अब अपन इसमें ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आर वेरी लार्ज, मतलब इस तरह से अपन भाई स्ट्रिप्स तो हमने अज्यूम करी है, स्ट्रिप्स तो हमने अज्यूम करी, तो इनकी विड्थ को हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना, इनकी विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आर वेरी लार्ज, number of strips are very large means their width will slowly decrease, then in this way we can say that n tends to infinity। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ये जो सिग्मा वाला जो साइन है ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इंटीग्रेशन मैंने ही पढ़ाया था, मुझे याद है अभी भी, मोशन स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको पढ़ाया था आपको, और तब मैंने अलग से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। जो बच्चे उस टाइम मेरे से जुड़े हुए थे इस क्लास में उनको ये बात डेफिनेटली पता होगी कि इंटीग्रेशन मैंने आपको मोशन स्ट्रेट लाइन में करवाया था, और वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिक्स के में बहुत काम आते हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेशन आपको आ गया है काम, अब मतलब इंटीग्रेशन हमारे वर्क डन में भी काम आ रहा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और उस टाइम भी मैंने आपको इंटीग्रेशन का मतलब ये बताया था कि यदि कोई डिस्क्रीट वैल्यूज आपकी स्मॉल छोटी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है तो उनको सम अप करना होता है, उनको कंपाइल करना होता है, टोटल निकालना होता है, तो हम इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आप लोग, हमारे पास एक ग्राफ था फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, हमने पहले एक स्मॉल एलिमेंट ग्राफ से वर्क डन निकाला, और अब इसी तरह से स्मॉल वर्क डन को हमको मैथमेटिकली ऐड करना है, मतलब हमको इस पूरे ग्राफ में स्मॉल वर्क डन को ऐड करना है। तो हमारे को कौन हेल्प कर रहा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज ही यही है, इंटीग्रेशन टेक्निक इसी को बोला गया है कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, कोई भी वैल्यू का स्मॉल इंटरवल में आप कुछ वैल्यू निकाल के उसको आप पूरे इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ टेक्निक, बाय द टेक्निक ऑफ यू कैन से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सिस्टमेटिकली बता दिया है कि इफ द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आर वेरी लार्ज हियर, if the number of strips are very large, then I can replace this sigma sign with integration sign, or in this way our work done will be integration xi to xf। ये मैं लिमिट लगा दिया क्योंकि according to this graph initial position is xi and final position is xf, और डेल्टा x बन जाएगा dx, तो ये बन जाएगा f dx। तो दिस इज ओवर यू कैन से वर्क डन। मतलब मैंने वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट आपको आज बताया बच्चों, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कि इफ द फोर्स इज वेरिएबल ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देन व्हाट वी डू, वी हैव टू अप्रोचेस। सपोज ग्राफ इज गिवन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट ग्राफ, we calculate the area of that graph between force and displacement, and we can calculate the work done। उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नेगेटिव पार्ट का एरिया उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो गई है। अभी मैं बता देता हूँ आपको। और एक मैथमेटिकल अप्रोच जो भी मैंने बताई आपको, एक मैथमेटिकल, अब एक मिनट बच्चों थोड़ा सा वो चौक, यस, तो एक मैथमेटिकल अप्रोच मैंने बताई आपको कि इंटीग्रेशन, कि आपको इंटीग्रेशन से जब क्वेश्चन होगा तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ होगा फोर्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक मैथमेटिकल रिलेशन आपको गिवन होगा, और बाय दैट रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द व्हाट वी कैन से वर्क डन। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही पैटर्न का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया इन योर माइंड, और फिर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि वेरिएबल फोर्स में यदि मान लो ग्राफ दे दिया जा रहा है तो उसका एरिया कैलकुलेट करके मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, वर्क डन कैसे निकालेंगे। और फिर हम एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन ले लेंगे कि जिसमें हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन, हाँ बोलो, एनी डिस्टर्बेंस इज कमिंग इन वॉइस, इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग
If you don't want, do you want to say anything? Anybody want to say anything? Otherwise, you can mute your mic. Otherwise, you can mute your mic, but all mics are mute. Then whose voice is coming? Rohit Kumar Meena, you mute your mic, beta, if you don't want to say anything. Rohit Kumar, your mic is unmuted. Rohit Kumar Meena, can you hear me? Your mic is unmuted. Rahul Mahajan, your mic is also unmuted. Yes, now you are muted. If you have any doubt, you tell, na? You just say, otherwise you mute your mic. Because it is creating the disturbance in the whole class. And at the same time, now it is the प्रॉब्लम. रोहित कुमार मीना, क्या आपको म्यूट करना नहीं आ रहा है क्या? कैन यू हियर मी? कुछ तो बोलो. ना तो कुछ बोल पा रहे हैं ना. ओके स्टूडेंट, जस्ट वेट, आई टेक द स्नैपशॉट ऑफ योर नेम्स फॉर अटेंडेंस ऑफ द क्लास. एंड actually from the last many days I am following this method. I feel very convenient this method for attendance purpose. So students, today I am very happy that 28 students, 27 students are there, because it is the highest strength after midterm vacation in the class. I can see on my screen 27 students are there on the class, and I am very happy. Actually, I think it is a result of yesterday interaction with the parents of some defaulters. देखिए, हम भी फोन मजबूरी में ही करते हैं. कंप्लेन फोन जो करते हैं वो मजबूरी में करते हैं कि जब आप लोग को बार बार कहने के बाद भी आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते, तो हमें मजबूरी में फिर कॉल करना पड़ता है. आपके पेरेंट्स लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई आपका क्या. तो ये वाली बात है. अदरवाइज यदि आप रेगुलर अटेंड करते हैं तो फिर हम भी आराम से क्यों फालतू परेशान होंगे और क्यों आपको परेशान करेंगे लाइक दैट. ठीक है ना. तो थोड़ा सा ये आप देखिए, है ना. तो चलिए अपन एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों ही मेथड का. देखिए, ग्राफ में बनाता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैं बनाता हूँ आपके सामने. और हम इस ग्राफ से फिर क्या निकालेंगे, एरिया इसका वो निकालेंगे एक्स. और ये आपका एफ है, ये इस तरह से जाके इस तरह से जाके, और फिर ये ग्राफ थोड़ा ऐसे हो गया है और ये लाइक दिस. और इसको नाम दे दिया उसने ए बी सी एंड डी, और वैल्यूज भी वो लिख रहा है यहाँ पे. दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5. डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है. और सिमिलरली यहाँ पे 5, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और 5, और ये आपका 10. I think it is visible. और this is 15, and in the same way नेगेटिव में भी it is -10. ठीक है. ये ग्राफ, I think this graph is visible to everybody. Is this graph visible to everybody? I hope that it is visible to everybody. Yes. So yes, this graph is visible to everybody. Okay. Now the question is, calculate the work done for the displacement 0 to 5 meter. क्या क्वेश्चन है? You have to calculate the work done from 0 to, ये 0 origin, ये 0 ये रहा, 0 to 5 meter. I can't understand what is the problem. Rohit Kumar Meena, what is the problem with you? Otherwise I have to mute you. Yes. Student, I have already told you that you keep your camera on and mic is mute. Okay. कैमरा आप ऑन रखिए, कैमरा भी कोई ऑन रखता नहीं है. माइक अनम्यूट होने से आपके जो घर की आवाजें हैं वो पूरी क्लास को सुनाई देती है और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ. ठीक है ना.
यस। तो 0 to 5 मीटर, 0 to 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन। तो देखो स्टूडेंट, अभी इसमें ग्राफ, इसमें ये ग्राफ का एरिया निकालना है। अब इसमें हमको देखो कैसे एरिया निकालना है। तो ए बी, ये रेक्टेंगल बन गया, नहीं बन गया, नंबर वन, नंबर वन रेक्टेंगल बन गया। देखो आप, मैं नंबरिंग करके बता देता हूं। फिर यहां पे भी आप देख सकते हैं ये, यस, ये आपका क्या बन गया, ट्रिपेजियम बन गया, ट्रिपेजियम बन गया। और नंबर टू क्या बन गया आपका, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम जानते हैं सब, मैथ्स के बच्चे हैं। और फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल नंबर थ्री, और ये फोर आपका फिर एक ट्राइंगल है। अब देखो ये नेगेटिव फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट वाला जो वर्क डन है, उसमें जो एरिया निकल रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा नेट वर्क डन में। तो नेट वर्क डन मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे W इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल वन। मैंने नंबरिंग करके बताया है, ABCD नहीं लिख रहा हूं मैं, अपना अपना तरीका है। आप नेमिंग करके भी लिख सकते हैं, लाइक ABCD, लाइक ABEF, कुछ भी नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। एरिया ऑफ क्या बचेगा, ट्रिपेजियम, दिस इज कॉल्ड ट्रिपेजियम 2 प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 3। अब माइनस लिखूंगा, देखो क्योंकि मैं नीचे वाला एरिया ले रहा हूं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 4। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, सबको क्लियर। मेरे को इस ग्राफ का टोटल एरिया निकालना है, तो मेरा वर्क डन निकल जाएगा। मैंने पॉजिटिव पार्ट के एरिया को ऐड कर दिया, देखो प्लस प्लस प्लस, और उसमें से नेगेटिव पार्ट का एरिया माइनस कर दिया। वैल्यूज आपको दे रखी है बोर्ड पे ग्राफ में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एरिया आएगा तो वैल्यूज आपको गिवन होगी। अब ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, 10 इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10। दिख रहा है सबको 2 इंटू 10 वाला कंसेप्ट। यहां से यहां तक का ग्रेड 2 हो गया और ये 10 हो गया। तो अब आपका ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रिपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड एक तो हो गई आपकी 10 और एक पैरेलल साइड हो गई 15 इंटू हाइट। हाइट कितनी दिख रही है, 1, 2 से 3 1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स वी कैन से 10 प्लस 15 और इंटू हाइट। तो ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया बन गया। देखो समझ में आ रही मेरी बात, आई थिंक। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक पैरेलल साइड 10 तक जा रही है, दूसरी पैरेलल साइड 15 तक जा रही है ग्राफ में, यू कैन सी। प्लस ट्राइंगल का एरिया जानते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 हो गया 3 से 4। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसका बेस 1 और हाइट कितनी हो गई 15। ओके, नाउ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, तो माइनस 1/2 1, हाइट तो 1 ही हो गई और इसका हाइट हो गया 10। तो दिस इज, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा W 10 to 20 हो गया। यहाँ पे आपका 15 प्लस 10 25, और 25/2 करेंगे तो 12.5, क्योंकि ये तो 1 है तो 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 10 प्लस 15, ये मल्टीपल मत कर देना, 150/2 मत कर देना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 25/2 12.5, फिर 15/2 7.5, ठीक है, माइनस 10/2 5। तो इसको आप जरा बताइए मुझे क्या क्या आंसर आएगा। 12 प्लस है बेटा, 1 into 10 स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 1 into 10 दिख नहीं है सर, 1 into 10 सर फर्स्ट स्टार्टिंग में सबसे पहला टर्म। हाँ गलत कर दिया क्या, ट्रायंगल 1 रेक्टेंगल सर उसका बेस 1 है और हाइट 10 है। उसका बेस, ये किसका बेस, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का देखो ना 1 से 2। ओके ओके, हाँ हाँ सही है सही है सही है, गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी, यस ये 1 आएगा, 10 आएगा, सही है सही है। अच्छा 1 से 2, मैंने 2 ले लिया, ओके ओके ओके, अच्छा यही बोल रहे थे, आई थिंक नाउ क्लियर। यस सर। हाँ ओके, हाँ आई एम सॉरी, मेरी गलती है। 12 प्लस 7 प्लस 12.5 प्लस 7, अभी तो बाकी तो ठीक है आई थिंक, बाकी भी चेक कर लो एक बार। 10 प्लस 15, आई थिंक इट इज 25/2, ठीक है।
और वो तो ठीक है, 3/4 1 into 15, ओके, बाकी तो ठीक लग रहा है। यस, तो 12 + 7 19 और ये 20 हो गया पूरा, और 20 + 10 30 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 जूल। देखो 25 जूल आ रहा है क्या आंसर? व्हाट इज द आंसर? देखो 25 जूल विल बी द आंसर, ठीक है ना? तो दिस इज, तो ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आप करने की प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल गेट द आइडिया। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, दैट इज इंटीग्रेशन। आई थिंक इट इज क्लियर। एनी डाउट यू आस्क, यू कैन आस्क, you can message in chat box if you any doubt you can ask student। 25 जूल, yes, दिव्यांश सारस्वत ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके, यस। सो नाउ नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन द मैथमेटिकल। अब इंटीग्रेशन से अपन ये बता देते हैं क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी गिवन ए रियल इक्वेशन। तो a particle is moving along x axis from 0 to 5 and the influence of the force is given by 7 minus 2x plus 3x square. The equation of the force with the displacement is 7 minus, you can say 7 minus 2x plus 3x square, 7 minus 2x plus 3x square, कुछ भी ले लो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। That is in Newton. The question is find the work done, find the work done in moving from 0 to 5 मीटर। तो 0 से 5 मीटर तक मूव करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? दिस इज आल्सो वेरिएबल फोर्स। ये भी आपका क्या हो गया? दिस इज आल्सो टाइप ऑफ वेरिएबल फोर्स, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे आपका एफ बदलता जाएगा। दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। So now here what we have to do? We have to do the integration of the force with respect to displacement। और आपको ये भी बता दिया गया है कि कहां से कहां तक लेना है, 0 to 5 ओरिजिन से। तो लिमिट आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी 0 और अपर लिमिट बन जाएगी 5। भाई एक्स आई एक्स बताया था ही मैंने, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो दैट वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन 0 to 5 7 minus 2x plus 3x स्क्वायर। अब इसमें जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग रहा है वो केवल एक ही फॉर्मूले से काम हो जा रहा है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 बताया था मैंने। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 7 1 का x हो जाएगा, तो 0 to 5। आई थिंक ये तो कर लेना आना चाहिए आपको। x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 लिमिट 0 to 5 प्लस 3 और x² का इंटीग्रेशन x³ 0 to 5। समझ में आ गई बात? 7 अकेला था तो 7 का 1, तो 1 का मैंने बताया था dx हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अपन प्रॉपर्ली कर देते हैं एक बार। ये सही हो गया अभी। और फिर 2x में x का करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, x²/2, 3x² में 3 कांस्टेंट है, x³ x² का इंटीग्रेशन फॉर्मूला वो मैंने लिख दिया है, यदि कई बच्चे भूल गए होते दिनों में। यस, शिवम आंसर भी लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है बेटा। योर राइट आंसर इज देयर, 135 इज राइट आंसर। 7 ब्रैकेट 5 माइनस 0। अब यहाँ पे x की जगह 25 रखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी x की जगह 5, तो 25/2, ठीक है, माइनस प्लस 3। यहाँ रखेंगे x की जगह 5, तो 5 125/3। यही तो तरीका बताया था। वेरिएबल की जगह अपन क्या रख देते हैं, लिमिट्स रख देते हैं। तो दैट इज 35 प्लस 20 माइनस 25 और प्लस 125, दैट इज 135। तो इसका आंसर आ जाएगा 135 जूल। सो स्टूडेंट, दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स दैट वी डिस्कस टुडे। ओके, नाउ ऑलरेडी आवर टाइम इज आल्सो सेइंग
कि टाइम हमारा ओवर होने की तरफ जा रहा है. तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड टुडे द स्ट्रेंथ वाज गुड, appreciable strength I can say as compared to earlier days. So बस यही रिक्वेस्ट है कि कीप मेंटेन दिस स्ट्रेंथ डेली. At least I will be feeling very happy if I see all 35 students on the board. Board means in screen. Okay, student, it is only for your beneficial and you take it positive. ठीक है, so you just revise this and I expect you that at least you solve 2 questions from graph and 2 questions on integration on this method. Okay, so you just solve these questions, then your doubts will be clear and your practice will be also strong, and you will understand very clearly how to calculate the work done by variable force. So students, with this I say bye bye.